लाइक अगर मैं बताऊं आपको कि हाउ आई गॉट सिलेक्टेड इनटू माइक्रोसॉफ्ट, सो डायरेक्टली मेरी प्रोग्रामिंग ने मुझे हेल्प नहीं करी, क्योंकि रोल जो है वो सपोर्ट इंजीनियर का है, ठीक है। लाइक वहाँ पे आपकी थिंकिंग स्किल्स और लाइक आप कैसे सोचते हो और एनालाइज कैसे करते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो, वहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लाइक डेवलपमेंट वाला रोल नहीं है, तो प्रोग्रामिंग नहीं पूछी। बट मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे, बहुत सारे प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स जीते हैं भाई, किए हैं, और बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की है, इसलिए रेज्यूमे बनता चला गया भाई, उसके बाद रेज्यूमे सिलेक्ट हुआ है। तो ऐसा था। तो मतलब फर्स्ट ईयर में ही, लाइक सेकेंड ईयर में ही यूआईटी आरजीपीवी जाके एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन जीता। उसके बाद फिर सेकेंड थर्ड ईयर में कोडविटा भी रेज्यूमे में आया, फिर कोड जैम भी आया, फिर किक स्टार्ट भी आया, और हैकाथॉन्स भी आए। और हैकाथॉन्स तो भाई लाइक बेस्ट पार्ट है आपकी कॉलेज लाइफ के, वो मिस नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे ना रेज्यूमे बिल्डअप होता है। और मैंने नॉन टेक भी बहुत सारी चीजें की हैं, मैनेजमेंट वगैरह, मैनेजमेंट इन द सेंस इवेंट मैनेजमेंट, और भी बहुत सारी चीजें। सो उससे रेज्यूमे बिल्डअप हुआ ना, फिर आखिरी में लाइक आपको ना ग्रोथ तुरंत नहीं दिखती है, बट जो आपके रेज्यूमे में आता जाता है ना, वो कहीं ना कहीं इन द एंड आपको बहुत हेल्प करता है। तो ऐसा ही कुछ स्टोरी थी। My story of coming from first year till getting placed in Cisco and things. ठीक है, let me describe it. Like फर्स्ट ईयर वाज लाइक वेरी कूल फॉर मी। यू तब कॉलेज थे, अभी तुम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसे पढ़ रहे हो, सो दैट इज वेरी डिफरेंट। उस टाइम कॉलेज पे वी यूज्ड टू हैव सुपर फन, सारी चीजें करते थे। फर्स्ट ईयर फॉर मी, मैंने कुछ टेक्निकल नहीं किया, थोड़ा बहुत जो पढ़ लेती थी, दैट्स इट। एंड माय सीजीपीए वाज नॉट टॉपर, बट समवेयर इन द मिडिल, वेरी गुड। Then second year some hackathons and things started coming, so I started preparing, but that was also not going too good for me. I was like, okay, chilling around and playing. But then I got some seniors and they took me in their team. They took some interviews of the student in the second year, and I got chance to go in their team. And then we started preparing for hackathon. And those seniors were so passionate about hackathons. I don't know why. I that time I was unable to understand that why these people are doing that, but looking at their passion, so they, they taught me Android development. So there I learned Android development, how it goes. And then I started doing some Android and little web development things. And then of course we used to heard of many competitions. So उस टाइम क्या होता था, उस टाइम स्टूडेंट्स यूज टू गिवन दिस अपॉर्चुनिटी कि जब आपके सीनियर्स की कंपनी आ रही है ना, तो आप जाके किसी भी कंपनीज में ऑब्जर्व कर सकते हो, वॉलंटियरिंग कर सकते हो, and there you get chance to know about little about the companies and HR. So I went when the TCS campus was in our college, so I want to volunteer that. And there one of the HR or big management from TCS, he told me that TCS InfraMind is coming. So do you all know about it? So I thought, I said no, well, because we were like completely lost. We never checked our college WhatsApp groups, and that was on mute, of course. And so when he told me, I said okay. So he insisted me to, go and do that, TCS InfraMind. And I did it. Like it was first like MCQs round. I cracked it MCQs and wasn't so tough. It was about latest technologies. And then second part was it, when I cracked the first round, then the second round was video submission, TCS InfraMind. So for that video submission, you have to go through some ideas and prepare that. So for that, I and one of my friend, we both were only the team. So whole pressure was completely on me. I didn't knew how actually the technologies are going to be. But then also, I learned everything. It was DevOps technology. So it was completely new for me. But okay, I made some videos and I did it. I completed the second round. And then after, I think in third year only I got various things to do. Like I started the club. I thought, the people are having different clubs in the college, so there should be one club which should be there. And I was not the leader. Actually, Varnit itself selected me in that group. He was the selector of the group. He was the main leader. So he also, what he did, he actually told that there were more girls with me, and he wanted to select just 4 people. And he said, Rashmi, you have to appear in one competition, and then I will see like
you have the ability to get selected or not. So I thought, okay, so he's going to test me. So I thought, okay, I'll do that. So he took a test, but I was not in the mood to give him test because that time I think ego was more. So I thought like, no, I'm not going to give this test. How can he be the person who's going to take my test? So I said no. So then after, he said that Rashmi, Varnit said that Rashmi, we cannot select you because you are not ready to give this test. I said, okay, let it be. It was Webpack Club only. So I said, okay, let it be. I will have some day another thing. So then after he thought he must have thought something. And then he took all the girls and he took me also. And I was like, okay, I'm in the club. And then people started some presentation things in the GGITS. And then I was like, I'm just a member of that club. I'm not the leader. So Varnit was actually doing the things other members were also doing. But I think you have once a leader and you will be always a leader. So I think I was a leader in my college thing, in my first year, and during my school days I was the head girl, so I have that quality of leading whatever I am in. So I when I came in this club, I was just a member, and then I myself became self-owned leader. I was doing everything what a leader has to do, and then I started giving Varnit, Raj, everyone like, okay, this we have to do. Let's do that. And other leaders they lost some interest, and I was only the person who was doing the things. And then I took this club Webpack, and I think Webpack was also a very challenging thing for me. उस club में भी it was like many times क्योंकि you have some group of 7 people, so they must have been different thinkings. कई बार ऐसा होता था कि सिर्फ तीन तीन चार चार बच्चे बैठते थे club में. So others used to say कि हम class नहीं लेते हैं. And that time I started thinking that मुझे internships भी करनी है. And that time I was doing one internship in JIC, Jabalpur Incubation Center. So I used to go there and do internships. But meanwhile, जब मुझे classes भी लेनी होती थी, so I thought कि okay, they will take, other members will do that. But they used to tell कि Rashmi, we are busy and maybe किसी कारण class नहीं ले पाएंगे. Then I used to come from internship and then I used to take the class. I used to call everyone. I used to do immediate message, okay, the class is on, please come. And then I used to go and take that classes. So things were like that. How it started, like I was never a programming tech or competition programming, no. But from third year itself, when I realized that how everything is going to be important, from getting the chance my own self, from putting the leg in everything. So I started doing everything, hackathons, programming, because I know internships, placements आने वाली हैं. So placements के टाइम पे भी क्या होता था, उस टाइम हमें सीनियर से, जैसे भी आप लोग बात कर रहे हो, तो हम लोग भी अपने सीनियर से थर्ड ईयर में जब उनके कैंपस आते थे ना, तो वी यूज्ड टू गो एंड हियर द एक्सपीरियंसेस, भैया क्या हुआ, कैसे चला, क्या हुआ था. सो आई थिंक थर्ड ईयर में भी इनिशियल डेज व्हेन इट वाज फिफ्थ सेमेस्टर, तो इतना कुछ नहीं था. मेरे सारे फ्रेंड्स ने बोल दिया हमको अब क्लब में नहीं पढ़ाना है, बिकॉज वी ऑल आर बिजी इन आवर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट्स आएगा तो पढ़ना है अपना अपना. सो आई वाज लाइक, नो, ठीक है पढ़ लो. मैं आई यूज्ड टू कम एंड अलोन, मैं क्लब देख लेती थी. वर्णित यूज्ड टू बी देयर, राज यूज्ड टू बी देयर, वन और टू मोर मेंबर्स यूज्ड टू बी देयर, बट अदर्स दे यूज्ड टू गो आउट. एंड देन आफ्टर प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत थर्ड ईयर में ही करना चालू किया, टीसीएस इंटर्नशिप स्टार्टेड. इंफ्रामाइंड में फर्स्ट टाइम एवर अपॉर्चुनिटी मिली, 40 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया, दे गॉट chance to do this internship and I was one of them. So I got internship in TCS. एंड मीन वाइल जब मैंने वो इंटर्नशिप करी, उसके पहले मैं जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर में एक इंटर्नशिप करी रही थी. दैट वाज ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन HTML CSS जावास्क्रिप्ट. उसके पहले मैंने एक छोटी सी इंटर्नशिप करी थी, 1 महीने की थी, वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, बिकॉज दैट टाइम आई जस्ट वांटेड अ स्मॉल एक्सपीरियंसेस. उससे पहले मुझे मिल भी नहीं रही थी एज अ फ्रेशर टू गेट इंटर्नशिप. आई नो हाउ टफ इट इज. सो I got it through a friend, and that was in, I don't know the location. David IT Solution was the name of the company. Jabalpur में मिली मुझे internship, and there I used to go and work. And I have worked on everything over there. Web development, Android development, जो मैंने अपने seniors से सीखी थी उनके project में काम करके, that. And उसके बाद I got, जब आपके 2-3 internship देखने लग जाते हैं, then I think Internshala also takes your resume all over it. So एक टाइम पे मुझे 2-2 3-3 इंटर्नशिप भी मिल गई एंड आई वाज लाइक फ्री तो है लॉकडाउन में. एंड दैट टाइम आई थिंक लास्ट ईयर अप्रैल में आई डिड 3 इंटर्नशिप्स एट वन टाइम.
एक महीने मैंने 3 इंटर्नशिप में आई यूज्ड टू बी देयर। टीसीएस इंटर्नशिप, एक इंटर्नशिप जो मुझे इंटर्नशाला से मिली थी, नहीं एक्चुअली 2 इंटर्नशिप्स इंटर्नशाला से मिल गई थी, एंड वो मिल गई थी एंड आई कैन नॉट से नो। सो आई यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग, हो जाता था, मुश्किल नहीं था। टीसीएस इंटर्नशिप क्योंकि इतना कुछ रिस्की काम नहीं था, दैट वाज 3 मंथ्स इंटर्नशिप टीसीएस में। एंड दैट टाइम द मेजर वर्क वाज अराउंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जो ऑलरेडी मैंने अपने सेकंड ईयर में अपने सीनियर से सीख लिया था, थोड़ा ब्लूम कर लिया। एंड वो इंटर्नशिप्स मैं रात में कर लेती थी टीसीएस की, बीच की 2 थी मेरी वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप्स। सो दैट आई यूज्ड टू डू इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून। सो वो कम्युनिकेशन स्किल्स और थोड़ा टीम जो मेरे टीसीएस में थी उनके थ्रू मैंने मैनेज कर लेती थी। सो उधर से मुझे ये सब सारे स्किल्स आने लग गए, यू नो, हाउ टू टॉक इन द कंपनीज, हाउ टू बी एक्टिव, हाउ टू बी स्मार्ट, वो सब धीरे धीरे आने लग गया। एंड देन जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्टेड हुआ, then I used to call some of my seniors and ask him like this company is coming, what should be our next step, and they used to ask me तुम्हारी ड्रीम कंपनी, यू नो, अभी प्लेसमेंट सीजन्स में है जो जो आ रही है अपने कॉलेज में, उनमें से किस कंपनी में जाना है, इन विच कंपनी आर इंटरेस्टेड। सो मेरा आंसर था दैट इज जियो, क्योंकि उस टाइम जियो वाज, आई थिंक जियो में बहुत फन होता है एंड एवरीथिंग। सो जियो, आई सेड द फर्स्ट वर्ड वाज जियो। So I went ahead and फर्स्ट कंपनी टीसीएस, आई थिंक मेरे लिए फर्स्ट इंटरव्यू टीसीएस का था, क्योंकि वो इंटर्नशिप का तुरंत हो गया था एंड वी हैड क्लियरली नो आइडिया। कॉलेज में जो कैंपस प्रिपरेशन चल रहे थे, दैट वाज गुड, इंटरव्यू प्रिपरेशन वो सब ठीक, बट वो हमारे लिए एकदम से आ गई थी टीसीएस की। सो टीसीएस वो इंटरव्यू हुआ, रिजल्ट्स अभी आए नहीं थे, और जियो आ गई। एंड जियो वॉज कंपनी जिसमें मुझे एक्चुअली में जाना था, एंड दैट वॉज द फर्स्ट कंपनी, और मुझे उसमें जाना ही जाना था। आई वॉज लाइक 100%, मैं अपने सारे सीनियर्स को बोलती थी मेरे को यही कंपनी चाहिए, मुझे बस इसमें जाना है, बस उसके बाद मैं किसी कंपनी में पक्का नहीं बैठूंगी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। फिर जियो में हो गया। फिर जियो का रिजल्ट एक्चुअली थोड़ा लेट आया, बट वो 1-2 दिन में ही वो जियो में हो गया। एंड सेकेंड कंपनी पर्सी आई, सो वो भी क्रैक हो गई मेरे से। आई डोंट नो, क्योंकि वो जियो के लिए इतनी प्रिपरेशन थी कि वो पर्सी भी क्रैक हो गई। एंड देन आफ्टर छोटी मोटी कंपनी आई, देन पीपल सेड कि रश्मि सेम पैकेज है, क्यों किसी की सीट खराब करिए। सो आई ऑल्सो थॉट अबाउट इट, एंड फिर मैं बैठी ही नहीं कोई भी कंपनी में। पर्सी एक डेफोडिल आई थी, दैट वाज आल्सो आई क्रैक्ड फर्स्ट राउंड, मजे मजे में क्रैक कर दिया, फिर नहीं अब गलत कर रही हूँ मैं, सो मैं पीछे हट गई। और फिर आई थिंक सिस्को मेजरली, नहीं बोलूंगी, बट अमन वाज मेजरली सो मच इंटरेस्टेड इन सिस्को, वो उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। सो यू नो, मैं किसी और की जर्नी से इतना इंस्पायर हो जाती हूँ, सो आई यूज्ड टू सी कि अमन बहुत मेहनत कर रहा है, चलो ठीक है, अमन शुड गेट इट। एंड जब भी मैं उसके राउंड्स क्लियर कर रही थी, आई वाज एक्चुअली प्रेइंग कि अमन का हो जाए, ठीक है भाई मेरा चल रहा है। आई वाज नॉट सो मच इनटू सिस्को कि होना ही चाहिए होना ही चाहिए, बिकॉज आई वाज थिंकिंग नेक्स्ट लेवल चीज है, थोड़ी बड़ी चीज लग रही है, सो मेरे लेवल की नहीं लग रही है, मेरे से नहीं होगा। बट सारे राउंड्स होते गए, धीरे धीरे होते गए, वो अपने आप ही होते गए। एंड देन जब उसका टेक्निकल राउंड आया, टेक्निकल इंटरव्यू, दैट टाइम आई थॉट सिस्को का कि नहीं यार अब तो गई, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। बट देन ऑल्सो इट वेंट सो स्मूथ, मतलब इंटरव्यूअर ही वाज अप्रिशिएटिंग मी एट द एंड, एंड आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो। आई थिंक वो सारे एक्सपीरियंसेस जो बैकग्राउंड में मुझे मिल रहे थे, जो मेरे दोस्तों के सुने थे, दैट ओनली हेल्प्ड मी। और फिर दैट्स ऑल, सिस्को भी क्रैक्ड हो गई। सो आई थिंक इट वाज जस्ट कीपिंग ऑन गो मोड, एंड बस चलते जाओ। सो दैट्स इट, कुछ भी इंटेंशनली नहीं होता है, जो आप चाहते हो वो तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं सोच के बैठती तो मेरा सिर्फ जियो में होता है, मैं बैठी होती है अभी तक, बिकॉज जियो वाज द कंपनी आई वांटेड टू बी इन, बट सिस्को हो गई। सो जो होता है अच्छा होता है, या गो विद द फ्लो, दैट्स इट। अच्छा, इसकी बिल्कुल ऑपोजिट वाली मेरी है। लाइक अपन तो मतलब फर्स्ट ईयर से ही ऐसे थे ना कि पहली कंपनी आएगी और प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भाई ये भ्रम कभी पाल के मत रखना, ठीक है। क्योंकि लाइक था भाई कि पहले से ही हो जाएंगे फिर सबकी हेल्प करेंगे, बट यार आई यहाँ थिंक पे खुद का ही अमन नहीं हो ये रहा। बोल रहा है, अमन का मैं बता रही हूँ, अमन उज द ओनली, सबसे वो जो वाले बच्चे होते हैं ना फर्स्ट बेंच में, सबसे पहले टाइम पे आ जाएंगे स्कूल, सिंसियर सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं। अमन इज कम्प्लीटली द सेम पर्सन। क्लास टीचर्स, कॉलेज का एक टीचर नहीं होगा जो बोल देगा कि अमन will actually go through the journey he has been in placement season, he got to it। और राज सेम, आई थिंक जो बच्चे वो ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं ना, उनकी थोड़ी जर्नी थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है चीजों को लेके, डिफिकल्ट नहीं, बट गुड थिंग्स टेक टाइम। सो या दैट्स ऑल। सो ऐसा ही था, लाइक बहुत वेट करना पड़ा, ठीक है।
और वेट करने में सबसे एक बड़ी बात ये होती है ना कि पहली बात तो ये है कि आपको कुछ लोग चाहिए होते हैं जिनसे आप बात करो, ठीक है। तो लाइक जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं बात करता था ये लोगों से। लाइक थोड़ा रात से तो नहीं होती थी बट वरनेट से थोड़ी बहुत, और रश्मि से तो हर 2-3 दिन में हो जाती थी। तो बस यही बोल रहा हूँ कि यार लाइक अगर आपका जल्दी हो गया है तो अच्छी बात है बट अगर नहीं हुआ है ना तो बी लाइक रश्मि, ठीक है। अपने दोस्तों से बात करना है, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि जब तब नहीं होता ना तो बहुत दिक्कत होती है। सो नहीं बात ऐसा नहीं करते है, आई रहना। थिंक नॉट बी लाइक रश्मि, इट्स लाइक बी लाइक अमन। अमन मतलब कौन टीचर, अगर आपको कुछ कोई टीचर सामने से बोलता है ना दैट अमन यू विल गेट प्लेस्ड, एंड जब आपकी जर्नी इतनी डिफिकल्ट जाती है देन इट्स टाइम की बहुत चांसेस होते हैं यू शुड गिव अप सिचुएशन आती है। बट अमन ने वो कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। आई थिंक ये जो माइक्रोसॉफ्ट का भी जो दिस कॉम्पिटिशन है, वो अगर वो कंसिस्टेंट नहीं होता उस मोमेंट पे, अगर वो गिव अप कर चुका होता तो दैट वो अभी माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होता। वो वो एक बंदा था जो सबसे पहली कंपनी में प्लेस्ड होता, जो डिजर्व करता था पहली एक कंपनी में प्लेस्ड होना। बट फर्स्ट में नहीं हुआ, वो दूसरी में नहीं हुआ, वो तीसरी में नहीं हुआ, वो एक्चुअली 10th कंपनी में प्लेस्ड नहीं हुआ। बिलीव मी, वो ये सारे छोटे छोटे लोग प्लेस्ड हो गए जिनको आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये प्लेस्ड हो जाएंगे, वो सब प्लेस्ड हो गए, पर अमन प्लेस्ड नहीं हुआ था। सो पता नहीं उससे साउथ राउंड निकल ही नहीं रहते। इवन इन टीसीएस द बैड लक दैट फॉलोड हिम, ही डिड इंटर्नशिप, सबको इंटरव्यू कॉल्स है, उसको इंटरव्यू कॉल नहीं आया टीसीएस का। दैट इज अ डिजास्टर। बट ठीक है, यू नो बोलते हैं ना भगवान आपकी परीक्षा लेता है, तो परीक्षा का फल भी मिलता है। वेट फॉर द फल, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करना, अपनी वॉल में लिख लेना प्लेसमेंट सीजन में, क्योंकि होगा। बट ठीक है, इवन राज का केस, राज से मेरी बात थोड़ा ज्यादा नहीं हो रही थी क्योंकि राज इतनी बात किसी से करता नहीं है, वो थोड़ा शांत शांत टाइप बनता है, इतना ज्यादा खुल के नहीं रहता किसी से। अगर कोई यहाँ पे शांत टाइप है तो इंस्पिरेशन इज राज, डेफिनेटली। सब कुछ कर सकता है वो, ही इज टेक्निकल, ही इज एवरीथिंग, ही इज द मोस्ट काइंडेस्ट पर्सन ऑन द कॉल टुडे, सबकी हेल्प करेगा वो, ठीक है। उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी है, उसका गेटअप देख लो, दैट इज सुप्रीम, अलग नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। बट उसका प्लेसमेंट सीजन भी ऐसे ही था, फर्स्ट कंपनी दूसरी कंपनी वो प्लेस नहीं हो रहा था। एंड आई हर्ड कोई एक छोटी सी कंपनी आई थी, ही गॉट प्लेस्ड एंड पीपल वर टेलिंग कि भाई राज जा रहा है उस कंपनी में। एंड आई वाज लाइक डोंट नो राज क्यों जा रहा है यार, राज डिजर्व नहीं करता। मैंने सुना पीछे से बैकग्राउंड में कि राज इस कंपनी में जा रहा है, एंड आई थॉट कि नहीं नहीं, राज को इसमें नहीं जाना चाहिए। बट वो एक अपॉर्चुनिटी थी, फिर आपको लगता है नहीं ठीक है, सो ही वाज गोइंग इन दैट। बट अभी 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 राज ने दो दो बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ क्रैक कर ली हैं। सो गुड टेक्स टेक, अब भी क्रैक किया उसने कुछ दिनों पहले। सो बस ही क्रैक्ड इट। वो जो आई थिंक अमन ने जो फर्स्ट वर्ड बोला ना, कि आप जो आज कर रहे हो ना, फर्स्ट ईयर में जो कर रहे हो आप, वो रिटर्न आएगा। आप थर्ड ईयर में जो कर रहे हो वो रिटर्न आएगा, वो लास्ट में रिटर्न आएगा, कभी ना कभी आएगा, वो रिटर्न तो मिलेगा उसका। सो या दैट इज इट। तो प्लेसमेंट तो देखो भाई, डिफिकल्ट है प्लेसमेंट, तो इजी तो नहीं था। छोटी मोटी हमको लगती थी छोटी है, ठीक है। हम फिर जब हमसे छोटी भी क्रैक नहीं हुई तब हमको भी टेंशन हुई कि भाई छोटी कंपनी है, बोलते छोटी कंपनी है, बोलते तो नहीं जाएंगे भाई टीसीएस में, क्या ही है टीसीएस, सर्विस लेवल कंपनी है, नहीं जाएंगे। आखिर में जब बोलते 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 टीसीएस में नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, आखिर में वही क्रैक हुई सबसे पहले, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो टीसीएस क्या है, टीसीएस में सबसे पहले कंपनी वही क्रैक हुई। तो मैं बोला यार जहाँ जाना नहीं था वही वही क्रैक हो रहा है, चल मैं ठीक है कुछ तो आया। फिर उसके बाद जो सबसे पहला प्लेसमेंट होता है, एक चीज होती है टेंशन का लेवल, ठीक है। जैसे जैसे प्लेसमेंट की कंपनीज निकलती जाती है वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जाती है। और एक बार ये कोई भी कंपनी प्लेस हो जाओ, नो मैटर हाउ, जितना भी पैकेज हो, 3 हो 4 हो, डजंट मैटर, एक बार अगर प्लेस हो गए तो तुम्हारा वो टेंशन जो होती है ब्रेन से वो हटती है कि ठीक है अब हमको इस बात की टेंशन नहीं है। नाउ यू कैन फोकस मोर ऑन अदर थिंग्स, ठीक है। क्योंकि ये जो कंपनीज है इनको क्रैक करने के लिए तुमको एप्टी वगैरह पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करने के लिए यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस एप्टी थिंग। आपको अपना कोडिंग स्टफ को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और कोडिंग स्टफ तुम्हारी जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसके बाद फिर तुमको बेसिक जो कम्युनिकेशन स्किल्स और इन डेप्थ इंजीनियरिंग होती है बस उस पर फोकस करना था, और वही चीज मजेदार होती है बेसिकली, ठीक है। एप्टी वगैरह में मेरा कभी मन नहीं लगा आज तक। अभी भी मेरा कल परसों कोक्यूब्स का एग्जाम था, मैंने उसको क्रैक किया, मतलब उसको दिया मैंने, कुछ नहीं 530 नंबर आए, 530-40 कुछ इतने नंबर आए हैं। कोडिंग है उसमें मेरे,
97% कोडिंग और 80% कंप्यूटर फंडामेंटल्स, 73% इंग्लिश, उसके बाद एप्टी क्वांट्स सब ऐसे 20%, 30%, 40%, बस एनालिटिक्स में 40% बस। तो लाइक आई वाजंट समवन हु वुड लाइक अंडरस्टैंड कि अपना ध्यान उस पे दिया, कभी दिया भी नहीं। वैसे इन पे क्वांट्स पे ध्यान देना पड़ता है यार, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा अभी तक। इवन जब मैंने वो क्रैक किया था इसका टीसीएस का, उसमें भी क्वांट्स वगैरह आए थे, लेकिन मैंने उसके लिए क्या किया था, सिर्फ वो जो एक वो होती प्रेप इंस्टा करके एक साइट है, उस पे कुछ फॉर्मूला की चीट शीट है ना, वही उसको मैंने पढ़ा और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए और बस निकल गया। वो तो पता नहीं ऐसा अंधा पेपर दिया मैंने, निकल गया टीसीएस। टेंशन तो थी। आई वाज समवन हु वाज लाइक क्रेजी अबाउट टेक एंड लाइक ठीक है, कभी कभी टीचर को ऐसा मजे लेने के लिए बोल देता था, क्योंकि लाइक अपन लोग ना सब सब जेई की प्रेप करके आए थे, ठीक है ना। तो जब इन लोग पढ़ाते थे कुछ ना कि हाँ भाई फिजिक्स में ऐसा होता है, मैथ्स में ऐसा होता है, तो जहाँ अपने को पता चलता है हाँ भाई ऐसा तो है ही नहीं, तो अपन खड़े होकर बोलते हैं सर ऐसा तो है ही नहीं, या फिर ऐसा गलत है, या फिर ऐसा कुछ कुछ इसमें ये कंडीशंस होती है, तो हमेशा अपन खड़े होकर बोल देते थे कि नहीं सर ऐसा तो है ही नहीं। मैम बोली कि ठीक है ऐसा फंक्शन का ग्राफ होता है, मैम ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है, जब अपने को पता है। तो उसके बाद ऐसे ठीक है 1 साल 6 महीना ऐसे किया मैंने, फिर मैंने सोचा भाई दिस इज, हाँ राज भी यही करता था, हम लोग ये साथ में। सबसे नहीं, ये दोनों हाँ ऐसे ही करते थे। ये एक्चुअली ये दोनों एक बेंच में बैठते थे, ये और एक और इनका फ्रेंड था। और ये लोग बस टीचर पढ़ाते थे और ये लोग गलतियां देख के नीचे, बट आई थिंक वर्णित कभी कभी बोल देता था, राज कभी नहीं बोलता था। राज को सारी नहीं मिस्टेक्स पता होती थी क्या गलत पढ़ा रहे हैं, बट मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कॉलेज वाले गलत पढ़ा रहे हैं, मतलब सही पढ़ा रहे होते हैं। बट आपका लेवल दूसरा होता है ना, आप स्कूल साइड से जब आते हो, अलग स्मार्ट बन के आते हो ना, तो कई चीजें ऐसी होती हैं। पर राज कभी नहीं बोलता था, वो चुपचाप बस, क्योंकि उसको फर्स्ट ईयर में ऐसा था, आई थिंक फर्स्ट ईयर राज का वो खुद ही बता देगा, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि यू नो हम लोग सेम क्लास सेम बेंच लेवल पे ही बैठते थे। तो राज वाज लाइक, राज कभी कुछ नहीं बोलता था। फर्स्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको फिर से जेई एग्जाम देना था, तो वो जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था फर्स्ट ईयर में। सोचो उसको टेक्निकल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था राज को फर्स्ट ईयर में। एंड देन आफ्टर सेकेंड ईयर से उसने जो टेक्निकल में फाड़ा है ना, ट्रस्ट मी, ज्ञान गंगा में सीटी में जितना नॉलेज अभी राज के पास है ना, उतना मतलब रेयरली किसी के पास होगा। तो राज क्या है, हम लोग क्या करता था, राज मेरे को बताता था, और इवन 1 साल के बाद मेरे साथ रहने के बाद राज हो गया था वैसा, ठीक है ना, वो खड़े होके बोल देता था। ऐसा कोई वो मूक प्राणी नहीं है, वो भी बोल देता था, ठीक है। तो कब बोला वो यार, मैं उसने कहाँ पे बोला, थी? हाँ राज मेरे बाजू में बैठता था, मुझे पता है, ठीक है। तो वो बोल देता था कभी कभी कि सर ऐसा तो नहीं है, या फिर जब एल्गो के टॉपिक्स आए थे उस टाइम के बीच में, जब 1 साल ये हमारे साथ रह गया ना, जब हमारा रंग चढ़ गया इसको, तो ये भी बोलने लगे हाँ यार गलत है तो बोलेंगे उस पर। तो और मोस्टली जब ये होता था, ये मेरे को बोलता था कि देख वर्णित ऐसा है, दिस इज रॉन्ग। तो मैं बोलता था हाँ ठीक है, थोड़ा एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि हाँ ये सही में गलत है क्या, फिर कंक्लूजन पे आते थे कि हाँ भाई गलत है कि सही है, फिर कंक्लूजन पे आते थे हाँ गलत है, तो फिर खड़े के बोलना है। तो कंक्लूजन पे आए और फिर खड़े के बोल दे कि हाँ सर ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर मतलब ठीक है, फिर एक मजे के लिए करते थे बेसिकली, हमको ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम क्या करें, हम तो बस मजे के लिए बोलते थे कि सर ऐसा तो नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये सब। ऐसा इंटेंशन नहीं था टीचर को बुरा बोले, ये करें वो करें, उनको डाउन फील करना, ऐसा कुछ नहीं था। हम मजे के लिए करते थे, कॉलेज में आए तो थोड़ा बहुत कर लेते थे। फिर उसके बाद 1 साल के बाद समझ में यार ऐसा तो यूजलेस है, क्या करना, मतलब टाइम ही वेस्ट हो रहा था, और भी मस्तियां कर रही थी। दिस इज अ वेरी स्मॉल टास्क, ठीक है, टीचर से मुंह चलाना इज अ वेरी स्मॉल टास्क, दिस इज नॉट अ बिग टास्क। इसके बाद बहुत सारी बोल सकते हैं ना चीजें हैं, अब शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम चाहते हैं, ठीक है, कि इस मस्ती के भी ऊपर एक लेवल है, ठीक है, तो हमको अब फिर उस चीजों पे फोकस करना था, ठीक है, इसको छोड़ो फिर दूसरी चीजों चलेगा, ठीक है। तो टेक पे तो हमेशा ही फोकस था मेरा। जेई का भी सोचा था, जेई दिया भी था, ओबीसी का कट ऑफ पार कराए थे, जनरल थे अपन, तो फिर से नहीं हुआ, पहले तो दिया ही नहीं था, पहले बीमार पड़ गए थे, तो फर्स्ट ईयर वाला जो एंट्रेंस एग्जाम होता है सबसे पहला वाला, वो दे नहीं पाए, ठीक है। तो फिर ज्ञान गंगा आ गए, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे ही मैंने, फिर फर्स्ट डे पे भी यही था, मैथ्स फर्स्ट डे में पहला लेक्चर ही मेरा मैथ्स था। फर्स्ट डे के पहले लेक्चर पे मैथ्स था, मेरे बाजू में सचिन बैठा था, सचिन और कोई मराठा करके उसके साथ कोई था, ठीक है। तो हम लोग बैठे हुए थे, अब अमन भी पास में ही था थोड़ा आगे, हाँ अमन अमन टोल्ड दैट कि मेरे 96% आए थे कंप्यूटर में, एंड लाइक आई वाज थॉट हाँ भाई इसमें दम है बंदे में, ये ना ना 96% ना, आए। 96 10th में आए थे, 12th में 100 आए थे। हाँ अरे भाई देख लो 100, ठीक है ना।
तो ये आईसीएसई में कंप्यूटर साइंस वाला बंदा 100% लेके आया, मैंने बोला भाई इसमें दम है, ठीक है। और फिर वो मैथ्स का था, मॉड्यूलो फंक्शन कुछ था, मॉड्यूलो फंक्शन का ग्राफ कुछ उन्होंने थोड़ा सा अलग बना दिया था। मैंने बोला मैम ऐसा नहीं है। फिर वही उधर से जहाँ से चालू हुई ये बहस, तब तक चलती गई 1 साल पूरी, ये बहसें चली है टीचरों से कि हाँ भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। फिर अपन, ठीक है, अब फर्स्ट ईयर बहुत बहुत एपिक जर्नी है, ठीक है, बहुत एपिक जर्नी है। अगर तुम सोचोगे ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट हैकाथॉन, ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो हमारा सबसे पहला सोशल इवेंट था। हमारा ये था कि हमको ये इन लोग क्विज में गए थे, अमन अमन और इसके साथ वो था एक और लड़का, जतिन, हाँ जतिन था। तो ये लोग गए क्विज के लिए कि ठीक है, अब ये लोग क्विज के लिए गए, और हम लोग, मैं गया था। मैं ऐसे 2-4 लोग की ऐसी टीमें बना लिया कि ठीक है यार, बोलना तो मुझे ही पड़ेगा एट द एंड, ठीक है। फिर मैंने टीम बना ली, और फिर क्रिप्टो करेंसी था टॉपिक उस टाइम पे। सोचो अगर उस टाइम मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीद ही लिया होता इतना बोलने के बावजूद, तो आज क्या होता। चलो वो छोड़ो, दूसरी बात, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी की थी स्पीच, आधी स्पीच दी। आधी स्पीच देने के बाद हमको लगा टाइम जा चुका है। मैंने टेक उसका बहुत डेप्थ में पढ़ा कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, बहुत डेप्थ में पढ़ा। और मैंने सिर्फ हाफ टाइम, तो मतलब जितना टाइम अपने को अलाउड रहता है एक डिबेट में, इससे पहले डिबेट नहीं, प्रेजेंटेशन टाइप कुछ था। अब एक प्रेजेंटेशन में अपन ने कभी दिया नहीं, अपने को टाइम लिमिट कुछ पता नहीं, अपन फ्लो में चले गए, पूरा टेक में घुस गए, पूरा टेक संभाल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ठीक है दिस इज ब्लॉकचेन, दिस इज डेटा स्ट्रक्चर, सब कुछ बता रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी है तो, और ये हैशिंग वगैरह सब समझा रहे हैं। उसके बाद पूरा टाइम निकल गया, और अब हमारा आधी प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि मैं टेक में पूरा नाच गया, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि भाई अब तो आधा टाइम बचा है, कॉन्स प्रोस वगैरह सब छूट गया। तो हमने बोला कि भाई हमारा तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि देयर वर पीपल फ्रॉम अदर कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग, ऑल्सो एमबीए वाले भी, ठीक है, उनकी प्रेजेंटेशन अलग लेवल, ठीक है, एमबीए वालों की तरफ। तो हमको लगा कि भाई अब तो नहीं हो पाएगा। तो मैं पूरी होप में छोड़ चुका था, ऐसा कि मतलब हाँ भाई आज प्रेजेंटेशन कुछ हुई ही नहीं है, मैं ऐसा घर आके बैठा है मस्त, ठीक है। अब मेरे को कॉल आया है कि शाम को कई 4-5 बजे कि वी आर सिलेक्टेड। मैंने बोला भाई ये कैसे हो सकता है, आधी स्पीच दे के जो बंदा सिलेक्ट हो रहा है वहां पे, और भी तो पूरी पूरी स्पीच दे गया था। ठीक है चलो भाई, किस्मत है या फिर टैलेंट है, जो भी है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो उससे वो वहां से एक तुम्हारी मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई थी, वहां से स्टार्ट हुआ, और कम्युनिकेशन की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, ठीक है। हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, वहां से मैंने स्टार्ट किया कि हाँ, अब प्रेजेंटेशन जैसे देना चालू किया, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हुई। और वैसे भी अगर तुम किसी एक टॉपिक के बारे में बोल रहे हो ना, जिसको तुम बहुत अच्छे से चाहते हो दिल से, ठीक है, टेक के बारे में मुझसे बुलवा लो, लाइक बिल्कुल एक भी मेरे को स्टार्टर नहीं होगा, क्योंकि मेरे को वो जो चीज तुमको अगर पसंद है और तुम उसके बारे में बोलोगे ना, तो तुम कभी नहीं रुकोगे उस चीज के बारे में, कभी तुमको सेकंड थॉट नहीं आएंगे उस चीज को बोलने में। तो बस वही है कि जो तुमको चीज पसंद है, या फिर हर चीज को अपना पसंदीदा बना लो, तो अपने आप कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा कि हर चीज हमको पसंद है जीवन में, तो तुम हर चीज के बारे में बोल पाओगे। और बाकी मेरे मेरे लिए टेक था, तो मैं टेक में बोल दिया, ठीक है, टेक में मैं आगे बढ़ा, बताया उनको ठीक है दिस इज। और उसके बाद फिर हम गए वहां पे आईआईटी में। वहां तो अब कंफर्मेशन था, हाँ, एक एक पर्सन बैकआउट कर गया था हमारी टीम से। हमारे पास अब टीम 3 की थी, 4 लोग थे, 3 की टीम थी हमारे पास, हम 3 के ही गए। और अब वहां पे कंपटीशन देखा, और देखा तो देखते ही रह गए। देयर वर पीपल जिनका कम्युनिकेशन एकदम बुलेट जैसा था, वो इतने इफेक्टिव तरीके से अपनी बात डिलीवर कर पाए थे कि हम तो कहीं नहीं लगते थे उनके, कहीं नहीं, ठीक है। तो उसके बाद देख के भी बहुत कुछ सीखने मिला, इतनी सारी प्रेजेंटेशन हुई, सामने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोला, हम समझे हाँ भाई, बड़ी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन हुई। उधर से एक हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ कि हाँ भाई अब यहाँ से कम्युनिकेशन समझना चालू हुआ। उसके बाद ठीक है, हार हुर गए वो दूसरी चीज, हार गए अलग चीज, सीखने बहुत कुछ मिला। सीखने के बाद हमने क्या किया कि ठीक है, अब फिर हाँ, फिर घूमने उमने वाला फेज आया, वहां बहुत मजे किए, ठीक है। अमन था हमारे साथ, हाँ, ऑटो में पीछे बैठ के हम घूम रहे थे पूरा भोपाल ऑटो के पीछे बैठ के घुमाए, ठीक है। और एक जो सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी, ठीक है। यू कुड कंपेयर योर फर्स्ट ईयर टू योर थर्ड ईयर, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इंजीनियरिंग में, तो मैं बोल सकता हूँ इंजीनियरिंग इज अ जर्नी विच कुड चेंज यू एंटायरली। मैंने फर्स्ट ईयर से जो खुद को देखा है, और आज फोर्थ ईयर में खुद को देख रहा हूँ, दिस इज अ वेरी चेंज्ड पर्सन, जिसका कॉन्फिडेंस एवरीथिंग इज एट अ +1। हाँ, कुछ कुछ नेगेटिव 1 में गया होगा, हो सकती है ना भाई, बिकॉज चेंज इज ऑल्सो समथिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यू कांट बी लाइक ऑल पॉजिटिव, कुछ कुछ नेगेटिव्स आए होंगे, लाइक ठीक है।
एरोगेंस होती है किसी में, कुछ कुछ I होता है। see the positive, you know. पहले हाँ वर्णित को I think मतलब you know actually टीचर्स सिर्फ ऐसे जब बोलते थे ना तो दे यूज्ड टू टेल कि रश्मि और अमन को हम लोग कुछ भी काम होगा हम और रश्मि और अमन दे आर द ट्रस्टेड पीपल वी विल गिव देम एंड दे विल कंप्लीट इट। एंड वर्णित को जब हम लोग बोलते हैं सर लेट्स टेक वर्णित आल्सो, तो टीचर्स वेर लाइक नो वर्णित को नहीं लेंगे वो क्योंकि उसके 10 क्वेश्चंस अलग होंगे एंड ही विल से नो। तो टीचर्स को बोलते ही नहीं थे जाके, मतलब मेरे सामने खुद ही टीचर ने एक्सेप्ट किया है कि दे आर नॉट गोइंग टू टेक वर्णित एंड मेरी फर्स्ट चॉइस थी वर्णित को बोल दो। फिर आई थिंक वर्णित मेरे को जब उसने यस बोलना चालू किया ना जब चीजों के लिए, जब मैं टीचर्स जो मेरे को बोलते थे फिर मैं उसको वर्णित को बोल देती थी। सो जब वो मुझे यस बोलना चालू किया फिर आई थिंक अब एक बार अभी कुछ हुआ था एंड मैंने टीचर्स को बोला सर एक बार वर्णित के साथ आप ट्राई तो कर लो, वो हाँ बोलेगा एंड वर्णित सेड यस। और उसके बाद अभी तो मैं उसको देख रही हूँ सिर्फ वो यस ही यस बोलता है सब में एंड अब वो टीचर्स की एकदम 100% सुन रहा है, तो दैट इज चेंज। हाँ लाइक देखो मैंने ये चीज अब पिक की है कि एवरी एक्सपीरियंस इज योर एक्सपीरियंस इन योर लाइक बुक में तुम्हारे वो चीज एक्सपीरियंस ऐड होता है, तो कुछ एक वैल्यू आती है। हाँ कुछ एक वैल्यू तुम में ऐड होती है, कोई भी एक नया एक्सपीरियंस उठा लो, इधर इट्स ट्रैवलिंग, सिंगिंग, राइटिंग, जो भी कुछ है, इट इट एड्स अ वैल्यू इनटू योर लाइफ। ठीक है। uh, हाँ अभी बेसिकली मैं टेक 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 बहुत कुछ करना पड़ रहा है, टेक में ही हूँ अभी, बहुत डीप बहुत डेप्थ में टेक में जाना पड़ रहा है क्योंकि प्लेसमेंट सीजन है। अभी भी हमारा प्लेसमेंट कंफर्म नहीं है, नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में होगा जो होगा, तो उसके लिए अभी हमको बहुत डीप टेक डेप्थ में जाना पड़ रहा है। तो वी आर लाइक लीविंग ऑल दोस थिंग्स बिहाइंड कि ठीक है अभी इसको छोड़ो अभी इसको छोड़ो, तो 2-4 चीजें पीछे छोड़ी हुई है। लेकिन एज सून एज थिंग्स गेट नॉर्मल, ठीक है, आई एम सेटल, मेरे पास अपनी एक वो कंफर्टेबल जॉब है जो मुझे चाहिए थी, तो उसके बाद फिर चीज़ें चेंज होंगी। उसके बाद जो और नए एक्सपीरियंसेस ढूंढेंगे, तो यू शुड लुक फॉर एक्सपीरियंसेस व्हिच कुड लाइक हैव सम इफेक्ट ऑन योर लाइफ। ठीक है, तो उसके बाद अब सेकेंड ईयर में थिंग्स चेंज्ड ड्रास्टिकली, ड्रास्टिक चेंजेस हुए फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में। ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर wasn't that much change, but फर्स्ट से सेकेंड ईयर इफ यू आर गोइंग टू कॉलेज, अभी मेरे को ऑनलाइन का नहीं पता, इफ यू आर गोइंग टू कॉलेज फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा तुम में, इतना चेंज आएगा यू वोंट इवन थिंक ऑफ कि भाई मुझ में इतना चेंज कैसे आ सकता है, बिकॉज यस बिकॉज यू आर मीटिंग पीपल्स। तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर वॉज अ ड्रास्टिक चेंज। वो चेंज हम में ऐसे आया कि मैं इंटर्न वो गया था, उसके बाद हैकाथॉन गया था। हैकाथॉन एड्स सो मच वैल्यू इन योर लाइफ, यू अंडरस्टैंड पीपल जिसके साथ तुम वर्क कर रहे हो, तुम्हारे साथ 5 लोग होंगे, उन 5 लोग को तुम समझोगे, उन 5 लोग को मैनेज करोगे, अपनी टेक को भी मैनेज करोगे, खुद को भी मैनेज करोगे, बहुत सारी चीजें तुमको मैनेज करनी है। उसके बाद तुमको सोना भी नहीं है यार। हाँ आधे से ज्यादा लर्निंग तो वही होती है कि तुम खुद को सोने से कैसे रोकोगे। How to win hackathons is a very different thing, but how to get into hackathons and present yourself is a different thing। ठीक है, अब जब hackathons में जाते हो तो if you are a टेक पर्सन हो या फिर जिसने बनाया या फिर प्रेजेंटेशन, बेसिकली हर टीम एक लड़की को लेके जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, कि भाई इसको प्रेजेंट करने के लिए रख देंगे, या फिर अगर बीच में टेक एक आया तो अपन बोल लेंगे ठीक है टेक में कुछ है ये है, बोल देंगे कि हमने बनाया है तो हम बस जानते हैं। ठीक है, तो नाउ either you could have a superhuman into your team or you could have your own team। ठीक है, that is a different thing। hackathons जीतना is a very different thing। either you have to have someone जिसका टेक और प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि उसी ने बनाया भी है और उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, तो यू कुड हैव दैट वन पर्सन। या फिर वही है कि हैकाथॉन जीतने की एक रेसिपी अलग है, वो रेसिपी दूसरी चीज है कि तुम सामने वाले को कितने अच्छे से अपने जो तुमने बनाया है उसको समझा सकते हो। ठीक है, तो अब फर्स्ट हैकाथॉन, उसके बाद फिर अब आती है मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप। ठीक है, फर्स्ट इंटर्नशिप इट वाज एट न्यू दिल्ली बाय, जहाँ पे हम हैकाथॉन गए थे वही कॉलेज था, उन्हीं कॉलेज वालों ने एक इनविटेशन सेंड किया था कि इफ समवन वांट्स टू बिल्ड समथिंग फॉर आवर कॉलेज दे कैन अप्लाई फॉर इट। हमने अप्लाई किया था, मोस्टली पीपल्स ने नहीं किया था, लाइक देवर लाइक मे बी पता नहीं उन्होंने क्या सोचा था। हमने अप्लाई किया, 2-4 टीमें बस और थी, ज्यादा नहीं थी। ठीक है, सो दे कॉल्ड अस कि आ जाओ भाई बना लो। ठीक है, तो दिस वाज लाइक वेरी स्टेपिंग अप थिंग, बहुत यहाँ से स्टेप अप हुआ। क्यों, क्योंकि नाउ यू हैव इंडिपेंडेंस। ठीक है, नाउ जब हम वहां पहुंचे, उनका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ठीक है, उनको समझ में आ गया ठीक है दिस इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो भी हम समझ गए कि हाँ भाई ये बनाना है। लेकिन द इंडिपेंडेंस वाज विद योर टेक स्टैक। ठीक है,
जो टेक्नोलॉजी स्टैक तुमको यूज करना है, तुमको अगर एंड्रॉइड नहीं आता तो तुम एंड्रॉइड मत यूज करो, तुमको जो टेक स्टैक यूज करना है तुम वो टेक स्टैक यूज करो। तो वी वर वेरी इंडिपेंडेंट इन दैट थिंग कि हमको जो टेक स्टैक यूज करना है, तो मैंने वहां से नोड जेएस पिक किया, एंगुलर पिक किया, मोंगोडीबी पिक किया, बहुत सारी 2 मंथ 3 मंथ में जो जितनी लर्निंग थी सारी मेरी सिर्फ एक इंटर्नशिप में हुई। इतनी इतनी लर्निंग इज अ वेरी डिफरेंट लेवल। और उसके बाद जो वीकेंड्स होते हैं भाई, वीकेंड्स इज अ होल डिफरेंट थिंग। ठीक है, वीकेंड्स तो इंटर्नशिप की और इवन जॉब्स की भी बहुत बड़ी जान है। ठीक है, ए तुम्हारी फ्रीडम है, बी नई सिटी है, न्यू पीपल, और अब तो मतलब फ्रीडम तो बहुत बड़ी चीज है, और न्यू पीपल एंड न्यू सिटी बहुत डिफरेंट चीज है। तुम अब इतना घूमोगे, वो वहाँ पे भी एक्सपीरियंस है, लोगों को देखोगे, लोगों को समझोगे, वो भी एक्सपीरियंस है। नए लोगों से मिलते हो, दैट इज ऑल्सो न्यू एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे तुम नए लोगों से मिलते हो और लोगों से समझते हो, अपनी चीज़ें समझते हो, टेक स्टैक समझते हो, तो दिस एड्स इनटू योर लाइफ। तो इसके बाद दिस इंटर्नशिप से वापस आए, जब वापस आए तो सीनियर्स सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है। एक सीनियर को मैं लेके गया था अपने साथ। ठीक है, ही टॉट मी नियरली एवरीथिंग जो मुझे चेंज में हेल्प किया है। ठीक है, ही टोल्ड मी आई एम वेरी स्किनी। ठीक है, सबसे बड़ी लर्निंग कि आई एम नॉट फिट। ठीक है, टेक टेक वगैरह क्या साइड में। ठीक है, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, योर विजुअल अपील, योर करिश्मा वाली ये सब चीजें उनने मुझे समझाई कि ठीक है टेक अच्छा है, यू कुड लाइक फोकस ऑन टेक। अभी समझ रहे हो, बाद में भी समझ सकते हो, यू कुड फोकस ऑन एवरीथिंग, टेक वगैरह तुम समझ जाओगे, लेकिन द विजुअल अपील, द फिजिकल फिटनेस, द मेंटल फिटनेस भी एक इंक्लूडेड होना चाहिए यार, क्योंकि मेंटल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वी जस्ट गो इन अ होल डिफरेंट राइड कि हमको बस यही करना है, एंड इन दैट थिंग यू लॉस्ट योर सेल्फ, विच आई डोंट रिकमेंड एट ऑल। तुम खुद को कभी लूज मत करना, जो तुम्हारी खुद की एक आइडेंटिटी है वो तो तुम पकड़े रहो कि हाँ भाई, इफ यू वांटेड टू प्ले क्रिकेट, इफ यू वांटेड टू डू एनीथिंग, डू ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज दे आर गोइंग टू ऐड अ लॉट मोर वैल्यू देन ओनली टेक। ठीक है, टेक से तुम्हारा एक एक सिंगल पैशन कंप्लीट होता है, लेकिन बाकी चीजें पैशन नहीं देगा। तुम्हारा क्रिकेट पैशन नहीं था, किसी का पेंटिंग है, किसी का डांस है, वो तुम्हारा पैशन नहीं है क्या। सो ठीक है, टेक एक लेवल तक ठीक है, बट यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन ऑल दोस थिंग्स। तो फिर उसके बाद फिर जस्ट आते ही फिर भैया ने अपन ने किया गया जिम चालू। ठीक है, उसके बाद फिर चेंज हुआ, बहुत कुछ चेंज हुआ। उसके बाद से कॉन्फिडेंस 3-4 फोल्ड बढ़ गया। ठीक है, कॉन्फिडेंस और ये जो कम्युनिकेशन है ये सब बढ़ जाता है, 3 to 4 फोल्ड्स बढ़ जाता है जब तुम खुद को एक जर्नी के थ्रू ले जाते हो ये सब। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये सारी चीजें चेंज हुई नाउ, उसके बाद सेकेंड ईयर में ही मैं आ गया था वापस। एक्चुअली हाँ, टीचर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर्स, हमारे एचओडी सर, लाइक आई वुड commend him for his like dedication for me, and also like he supported me in every field till now. उनने मुझे इतना हेल्प किया है कि हाँ भाई तुमको कहाँ जाना है, ठीक है हम तुमको समझाएंगे कि ठीक है हम तुम्हारी जितना वो रहेगा, तुमको कितना परसेंटेज तुमको मेंटेन करना है। हाँ, लाला सर। सो ही टोल्ड अस कि ही टोल्ड मी दैट ठीक है तुम आफ्टर इंटर्नशिप तुमको इतने परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस मेंटेन करनी है, एंड दैट वाज कि हाँ सर इतनी तो मैं मेंटेन कर सकता हूँ, एंड ही लाइक ओके इतनी मेंटेन कर लो और इतने दिन पे तुम वो चले जाओ इंटर्नशिप, एंड ही हेल्प मी इन दैट। ठीक है, और इंटरनल मार्किंग में भी कभी कभार उन्होंने हेल्प कर दी कि ठीक है इफ बाय चांस ड्यू टू इंटर्नशिप आई मिस इट, तो वो ही वुड कम फॉरवर्ड एंड ओके डू one thing, give exam online and give me your answer sheets, I would like give them. ठीक है, तो he helped me a lot, and teachers, not only Lala sir, more teachers would help you. ठीक है, टीचर्स से ऐसा मत सोचना कि they would never help you, या फिर teachers would like stop you. Some of the teachers, I won't say some of the teachers, most of the teachers would help you. ठीक है, तो टीचर से अच्छी बना के रखो, they would help you surely. ठीक है, बस उसके बाद से सेकेंड ईयर से तो फिर भाई अब रुके ही नहीं। उसके बाद से फिर 2 हैकाथॉन्स, 3-4 हैकाथॉन हो गए, फिर 2-3 इंटर्नशिप्स हो गई, फिर थिंग्स विच स्टार्टेड चेंजिंग, kept changing till now, and life is a journey which would make you change from point to point. ठीक है, you won't be a person which you were 6 months before, or 1 month or 1 hour or 1 year later. ठीक है, you would be a totally different person. जो भी लोग बोलते हैं कि प्लीज डोंट चेंज, स्टे वॉट एवर यू आर, ये सारी चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं,
this is practically nearly impossible. Yes, this is practically nearly impossible कि ये चीज तुम फॉलो कर पाओ कि ठीक है they told you कि be as you are, तुम बहुत अच्छे हो, ये हो वो हो. This is like totally impossible thing क्योंकि कुछ भी तुम चीज से इन्फ्लुएंस हो गए आगे चल के. Again, this could be negative, positive. uh, Not everything is positive. कुछ negatives आएंगे. You could have change is the only phenomena which, yes, change is the only possibility which could happen in future. ठीक है, just like death, change is also another thing which would certainly happen in coming years. ठीक है, it could happen for good, it could happen for worse, but mostly it happens for good. और तुम खुद को एक अच्छे पोजीशन पे फोकस करते हुए देखोगे जब you would be working on all those things. अब फाइनल आते हैं प्लेसमेंट्स पे. प्लेसमेंट इज अ होल डिफरेंट जर्नी. जो प्लेसमेंट के पहले दिन की जो तुम्हारी मेंटालिटी होती है और 6-7 महीने 8 महीने के बाद जो मेंटालिटी होती है वो डिफरेंट हो जाती है एकदम. मतलब यू कैन 360 क्या बोलूं मैं, इट इज लाइक another dimension. You can't like measure it in angles. It's another dimension. You could think of कि ठीक है, you are completely changed. Your mindset on first placement test is कि भाई पूरे कॉलेज में अपन ने बहुत मेहनत की है, आज तक मेहनत की है, फर्स्ट प्लेसमेंट अपना होगा ही होगा. और मे बी हुआ नहीं हुआ, बट द थिंग इज अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारी चीजें ब्रेक होना चालू होती है कि भाई नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, लीव इट. उसके बाद जब तुम एक 6-7 मंथ के बाद पीरियड पे तुम आके रुकते हो ना, तब यू अंडरस्टैंड कि यार placement is not a goal, or being a software engineer is not a goal, or any position which you are going to work is not a goal, end goal. It's not a goal, it's a journey. तुम आज ये पढ़ोगे, कल ये पढ़ोगे, परसों ये पढ़ोगे, and it's a never ending process. तुमको ये लगता है कि भाई एक बार प्लेसमेंट हो गया and it would end. तुम प्लेसमेंट के बाद भी you would look at other people जो बोलेंगे भाई हमारा पैकेज 12 LP है, हमारा पैकेज 15 LP है, and you would be like हाँ यार है तो, and then you would compare yourself with that person कि भाई अब मुझे और पढ़ना है. So it's a never ending process. If you will be going to compare yourself कि हाँ भाई उसका 12 है, हमारा 15 है, ये है वो है, so ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि एवरीवन इज ऑन अ डिफरेंट जर्नी. ठीक है, हर किसी का रोल अलग है, हर किसी के टेक अलग है, हर चीज अलग है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खुद में या फिर सॉफ्टवेयर या फिर ये सारी चीजें, टेक फील्ड बहुत वास्ट है खुद में. हर कोई कुछ भी अलग काम कर रहा होगा एंड दे ऑल आर रिस्पेक्टेड. ठीक है, लीविंग ऑल दिस असाइड, कंपैरिजन कभी तुम्हारा खत्म नहीं होगा. वन थिंग विच आई वुड लाइक रिकमेंड, डोंट कंपेयर. बट कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होगा. तुम पढ़ना कभी छोड़ोगे नहीं, तुम खुद अपनी जो डेवलपमेंट है उसको कभी छोड़ोगे नहीं. सो देयर इज नथिंग टू बी डिप्रेस्ड अबाउट कि एक फेलियर आया, 2 फेलियर आया, 3 फेलियर आया. फेलियर इज नथिंग बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी लर्निंग है कि ठीक है मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत किया, और उन सारी चीजों को मैंने इकट्ठा किया कि हाँ भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और उसके बाद उसको ठीक किया. उसके बाद अब प्लेसमेंट के लिए अब जब मैं बैठता हूँ तो आई रेयरली थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटी कि अगर रिजेक्ट हुआ तो क्या. आई थिंक ऑफ पॉसिबिलिटी हाँ रिजेक्ट हुए तो क्या. सो लीविंग दैट टेंशन असाइड, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड लर्न अबाउट न्यू थिंग्स. अपनी लर्निंग पे फोकस करो. जस्ट डोंट फोकस ऑन अ सिंगल कंपनी और अ सिंगल टेक स्टैक. whatever excites you, just learn about it. And like I could guarantee you, your best version of yourself is not far from you. अगर तुम खुद में कंटिन्यूअस अंडरस्टैंडिंग लाते रहोगे उस चीज की कि हाँ दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम टू मी, कि हाँ भाई एक फेलियर आया, 2 फेलियर आया, दिस इज नॉट अ डिफरेंट थिंग. हाँ तो बस अब नाउ दिस इज एंड, लाइक अब हम लोग 4th ईयर में हैं एंड ऑन 4th ईयर वी आर लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है अब अगर मेरा आज तक ये बोलने में आसान है, ये बोलने में बहुत आसान है अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, ये बोलने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत डिफिकल्ट है कि आई हैवंट इवन केयर्ड इफ अगर मेरा अभी तक प्लेसमेंट ना हुआ होता. ठीक है, ये बोलने में बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बोलने में बहुत आसान है, करने में बहुत डिफिकल्ट है. अगर अभी तक मेरा प्लेसमेंट नहीं होता तो आई वुड हैव बीन इन अ वेरी डिफरेंट माइंड स्टेट. बट यस, अगर मैं खुद को बोलूं कि अगर अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ था तो क्यों मैं इतना टेंस होता, लेकिन नहीं, उस टेंशन की कोई जरूरत नहीं है. अगर अभी तक भी प्लेसमेंट नहीं हुआ होता तो यू कुड कंटिन्यू योर लाइफ. ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इवन फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पास्ड आउट इन 2019 अभी तक प्लेसमेंट चल रहे हैं उनके, अभी तक वो फ्रेशर लेवल पे आ रहे हैं. कई 2019 में पास आउट को फ्रेशर लेवल की जॉब मिल रही है. ठीक है, तो देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ कि अगर आज नहीं हुआ तो कल क्या होगा.
life happens at its own place. ठीक है, its own like what you pace, yeah, the word is life happens at its own pace. So आपका pace अलग होगा, किसी और का pace अलग होगा. So don't focus on this. अब final year है, we are like focusing on ourselves, not around competition. We are like working on ourselves. अपने को खुद का जितना level up कर सकते हो उतना level up करो and give your best. That is the thing for your whole college life. Okay. From the moment we enter the private college, there's a myth Yeah. regarding that placement, that no one can get a placement even if they are skilled because of the tag of private college. So, हाँ. according to you, is it true or it's just a myth? Okay, this is a total hoax. ठीक है, ये सब झूठ है. If you हाँ मतलब I could tell some companies which are like focused on tier 2 tier 1 thing, but 1% के पीछे तुम 99% को थोड़ी ना गलत बोलोगे. ठीक है, there are only 1% of these companies which tell you. ठीक है, हाँ, the companies which come into your campus, ठीक है, जो campus में companies आएंगी, they might not be that good, but yeah, but I don't like remind if Cisco was on campus or off campus, but mostly it was off campus. It was off campus. I think abhi because of COVID, scenario has completely changed. अब ये टायर 1 टायर 2 टायर 3 वाली चीज चली गई है, completely चली गई, ट्रस्ट में चली गई है, क्योंकि अब सारी बड़ी कंपनीज के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं. आप कॉम्पिटिशन्स क्रैक करो, बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं. आई थिंक 4-5 कॉम्पिटिशन होते हैं, हर कंपनी करवाती है. एक भी कॉम्पिटिशन अगर आप क्रैक कर लिए ना, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो कोडिंग ही होगा, बट कोई भी कॉम्पिटिशन आप क्रैक कर लो एंड यू आर इन दैट. माइक्रोसॉफ्ट में अमन है, दैट वाज अ कंपटीशन. सिस्को में मैं हूँ, सो दैट वाज आइडियाथॉन कंपटीशन. सो कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं अलग अलग. बस आपको ये होना चाहिए दैट यू हैव टू अपीयर एंड स्मार्ट होना चाहिए हर एक कंपटीशन में जाने के लिए. भूल जाओ ये बात कि आप कौन से कॉलेज में. हम लोग भी तो थे, यू नो, पीपल यूज्ड टू कॉल अस कि ये इधर से हो तो प्रॉब्लम होएगी, ये आएगी, वो होगी, बट दैट वाज नेवर अ पॉइंट. मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि सबसे पहले तो मतलब सामने आईटीएस वाले कॉलेज के ज्यादा बच्चे प्लेस्ड होंगे, तो अभी तो अपनी चांस थोड़ी कम है, अपन को थोड़ा पीछे रहना है. एंड आई वाज लाइक नो, लेट्स सी. एंड वो एक काम आ रहा था कि सब आईटीएस वाले प्लेस नहीं होते, और मैं प्लेस होते ही होते जा रही थी. मतलब ऐसी कोई कंपनी ही नहीं हो रही थी जिसपे यू नो मैंने क्रैक नहीं करा हो फर्स्ट इनिशियल डेज पे, फर्स्ट कॉम्पिटिशन, मतलब फर्स्ट राउंड जितने मुझे चाहिए थे. सो दैट इज ऑल अ मिथ. अगर तुम लोग आज भी सोच रहे हो ना, मैं तो बोले तुम लोग के टाइम पे तो मे बी गूगल भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाने लग जाएगी, तो गेटिंग इनटू गूगल विल नॉट आल्सो बी सो टफ. अमन ने अगर माइक्रोसॉफ्ट निकाल लिया, सो आई थिंक यू नो कंसिस्टेंसी चाहिए एंड एनीवन कैन गेट प्लेस्ड इन एनी ऑफ द कंपनीज. कोई भी कंपनी में प्लेस्ड हो जाओगे, सिर्फ कंसिस्टेंसी और स्मार्टनेस चाहिए बस. और कुछ कॉलेज तो मैटर ही नहीं करता. मतलब कॉलेज तो जितना अपने लिए कर रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ. कॉलेज वालों ने अभी कितनी सारी एकेडमीज ले ली. अपना कॉलेज, तुम लोग पता है जबलपुर में बेस्ट कॉलेज इसीलिए होगा पूरे जबलपुर में, सिस्को नेटवर्क एकेडमी अपने कॉलेज में बताया गया. बहुत सारे कॉलेज में पता ही नहीं है कि सिस्को नेटवर्क एकेडमी होती भी है, कैसे होता है. इजिएस्ट ऑप्शन था आई थिंक, नेटवर्क एकेडमी थी तो अपन प्लेस्ड होगा सिस्को में. अपनी वो है थोड़ा सा यू नो AWS एकेडमी हो गई. तो तुम लोग के लिए अब तुम लोग एक, आई थिंक वन ऑफ माय फ्रेंड शी डिड सिंपल, उसने एक AWS एकेडमी से एक सर्टिफिकेट किया AWS का, एंड देन शी क्लियरिफाइड वन एग्जाम ग्लोबल लेवल का. TCS में प्लेस्ड आराम से, नो इंटरव्यू, नथिंग, नो राउंड्स, शी इज प्लेस्ड इन TCS. क्यों सारा कुछ. आई थिंक अभी तुम लोग ने भी, तुम लोग के टाइम पे तो ये अली बाबा आ गया है, हर्ड राइट, अभिषेक ने कुछ क्रैक किया. सो क्या पता उसको एक थोड़े टाइम बाद इंटर्नशिप भी मिल जाए उसमें. यू कैन नेवर से क्या कब कंपनी करने वाली. मेरे टाइम पे इंफ्रामाइंड फर्स्ट बार हुआ था जब TCS वाज एक्चुअली गिविंग मतलब इंटर्नशिप्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रामाइंड. लोगों को पता ही नहीं इंफ्रामाइंड क्या था. इतना सड़ा सा कंपटीशन था वो, ट्रस्ट में सड़ा सा कंपटीशन था वो. क्विज और वो वीडियो मेकिंग राउंड. इनफैक्ट TCS में भी लोग बोलते, सॉरी सिस्को में लोग बोलते हैं 8 राउंड है, 8 राउंड्स टू गेट इनटू इट. व्हाट आर दीज 8 राउंड्स? क्या है वो 8 राउंड्स? एकदम सिंपल से सड़े राउंड. मैं सड़े ही बोलूंगी यार, उसमें कुछ नहीं रखा है. जस्ट बी कंसिस्टेंट, just be smart enough to crack it. बस smartness is the key to crack it. Do not मतलब सोचना ही नहीं है. मतलब या तो फिर अगर सोच रहे हो ना, कुछ सोच रहे हो तो ये सोचो that you are a warrior and placement season में तुमको वो एक warrior लेके जाना है and धाड़ सारी कंपनीज उड़ानी है बस. मेरे मन में तो यही था कि मतलब मैं बहुत चैलेंजिंग टाइप की हूँ, यू नो. अगर सामने से मुझे कोई चैलेंज करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो आई एम काइंड ऑफ दैट पर्सन कि सामने से किसी ने कुछ बोला है तो फिर मैं उसको 100 से 200% करके दिखाती हूँ. और आई थिंक
रेज्यूमे, यू नो, रेज्यूमे इतना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे रेज्यूमे, मैं ट्रस्ट करती हूँ, मेरे रेज्यूमे इज लाइक 7/10। हाँ, उतना तो होगा आई गेस। सो रेज्यूमे इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में आए और अपन आईएससी से थे भाई, और कंप्यूटर में 100 लेके आए थे, तो भाई बात तो कुछ और ही थी अपनी। ठीक है, लाइक पहले दिन से ही मैं फर्स्ट बेंच में रेड शर्ट में बैठा था, मुझे अभी भी याद होगा, आगे से मैं जवाब दे रहा था, पीछे से वर्णित जावा पे जवाब दे रहा था। ठीक है, तो ऐसे कहानी चालू हुई, और फिर एक कंपटीशन हुआ, इसी वाले भैया लोग ने करवाया था, उसमें लाइक वो बस ऐसे ही टैलेंट हंट नहीं, ट्रेजर हंट टाइप का कंपटीशन था, उसमें जीते। ठीक है, तो उसमें भी मजा आया। उसके बाद उसके बाद धीरे धीरे फिर वर्णित ने जो कॉन्वोल्यूशन वाला बताया था ना, तो हम लोग की कोशिश थी कि हम लोग ना वहां जाएंगे, क्या बोलते हैं कि कोडिंग वाले लेवल को क्लियर करके वहां पहुंचेंगे। बट मेरा क्विज में हुआ, वर्णित का प्रेजेंटेशन में हुआ, बट उससे कोई मतलब नहीं था मुझे। हम लोग को वहां जाने मिला पहली बार, वो भी सेकेंड ईयर में, लाइक सीनियर्स खुद बोल रहे थे कि अगर आप, सॉरी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड सेम में, लाइक सीनियर्स खुद ही बोल रहे थे कि आप अगर सेकेंड सेम में आए हो तो मतलब कुछ तो बात है। ठीक है, तो वहां पे जीते नहीं, बहुत घूमा, बहुत मस्ती की, और वो फर्स्ट टाइम था। फिर सेकेंड ईयर में, हाँ, अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर की शुरुआत में लाइक एक 3 दिन का इवेंट था, जहाँ पे लाइक अपने स्पंदन में कुछ हुआ था, जो भी हुआ था वो इंडक्शन वगैरह होता है, तो वहां पे सपन सर ने वो दिया था, स्पीच दिया था, तो मैं इतना मोटिवेट हो गया था कि मैं उनके पास चला गया और बोला मेरे को इवेंट करना है। लाइक क्या होता था ना कि अपने कॉलेज में कोई भी पोइट्री और स्टोरी टेलिंग और स्टैंड अप कॉमेडी इन सबको नहीं पूछता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि बहुत बुरा लगता था भाई, क्योंकि अपन पोइट्री वाले हैं और कोई पूछ ही नहीं रहा है, और जबलपुर में ऐसा कोई कल्चर है नहीं। तो अपन गए सपन सर के पास। पहले बहुत डर लगता था भाई टीचर से बात करने में, और वो तो ठीक है, सर है। तो फिर क्या हुआ ना कि गए, तो सर से बोला, सर हमें भी इवेंट करना है, कॉलेज में कर सकते हैं क्या? तो फिर उन्होंने बोला कि यार कॉलेज में ही क्यों, पूरी सिटी लेवल पे करते हैं। तो फिर सिटी लेवल पे हम लोगों ने चालू किया एक इवेंट कंपनी से कोलैबोरेट करके। तो यार ठीक है, टेक, अभी टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज था, क्योंकि मैं पहले ऐसा था ना कि मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था, लाइक इतना कॉन्फिडेंस था कि टीचर कुछ पूछे या कुछ बात कर रहा है तो मैं खड़े होके बोल दूंगा। बट जो पब्लिक रिलेशंस वाली होती है, मैं फोन पे बात नहीं कर पाता था, और भी चीजें होती हैं, टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट, लाइक पूरी टीम संभाली है, पोस्टर डिजाइनिंग वगैरह सब किया है भाई, वेन्यूज में जाके बात की है, स्पॉन्सरशिप्स ली हैं। तो भाई लाइक कल्चर, जो ओपन माइक कल्चर है ना, जो दिल्ली मुंबई बैंगलोर वहाँ यहाँ वहाँ बहुत फेमस है, वो 2 साल पहले जबलपुर में नहीं था, वो हमने लाया है यहाँ पे, मैंने और मेरे 3 फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स ने मिलके। ठीक है, और अगर अभी देखोगे ना आप, तो अभी हर हफ्ते जबलपुर में, लाइक कोविड सिचुएशन के पहले 2 ओपन माइक्स होते ही हैं, और वो जितने भी लोग हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं हमारे ओपन माइक से ही सबसे पहले मिले थे, और फिर वहां से आए हैं। तो और वो करीब हमने 2 साल चलाया था, लाइक थर्ड ईयर की शुरुआत तक चलाया था उसको, और फिर अभी भी ऑफिशियली क्लोज नहीं किया है, क्या पता कल ही पोस्टर आ जाए। ठीक है, बट ठीक है, उससे बहुत ज्यादा लाइक बहुत लोगों से मिले यार, बहुत ज्यादा, इतने स्टार्टअप वालों से मिले, और इंस्टाग्राम पेजेस बड़े बड़े, ठीक है, बहुत बड़े आर्टिस्ट, लाइक अभी जबलपुर का पूरा आर्टिस्ट सर्कल मुझे जानता है। ठीक है, और तो वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, और अब मतलब फिर कॉलेज में कोई भी इवेंट कराना हो या कहीं भी कोई इवेंट कराना हो, तो लोगों को नाम याद रहता था। ठीक है, तो ऐसा इधर बढ़ते गए, फिर ऐसा तो था ही नहीं कि भाई पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई तो करते ही थे। तो तो फिर क्या हुआ कि एक और बार कॉन्वोल्यूशन आया। ठीक है, अब वहां पे इस बार ना क्विज क्विज में सेकंड राउंड तक पहुंचा था मैं जोनल लेवल पे, बट जो कोडिंग वाला था ना, वो पता नहीं कैसे बट क्रैक हो गया था। ठीक है, तो इस बार कॉन्वोल्यूशन में वहां गए, तो और अपन ने दिया भाई, तो 3 में से 2 क्वेश्चन बने कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाले। तो मेरे को लगा नहीं होगा यार, बहुत बड़े बड़े लोग हैं वहां पे। ठीक है, तो नहीं, मैं बैठा था शांति से जब प्राइजेस मिल रहे थे, तो एकदम से मेरा नाम आया, उनके वाइस चांसलर ने, जो आरजीपीवी यूआईटी के वाइस चांसलर है, उन्होंने नाम लिया। तो सॉरी, डायरेक्टर, तो उन्होंने नाम लिया, तो मैं इधर उधर देखने लगा, फिर सर ने मेरे को बोला कि तू ही है, जा। तो फिर मैं वहां गया, और मैं अभी भी इधर उधर ही देख रहा हूँ, तो वो बेचारे खुद ही बोल रहे तुम ही हो, टेंशन मत लो। तो फिर वहां से जो लिया, तो ऐसा लगा कि यार कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक ऐसी चीज है ना, जो कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तो वहां से थोड़ा सा अपन जीते।
वहां से वापस आए। उसके बाद क्या किया, उसके बाद अपना बिग बस चल रहा है भाई, 3-4 शोज अपन ने करवा चुके हैं ऑल ओवर सिटी में, ठीक है। और भोपाल भोपाल जब गया था तो वहाँ की बहुत बड़ी जो स्टेज होती है ना, मतलब आरजे वगैरह सब आए हुए थे, वहां पे भी मैंने परफॉर्म किया था कुछ 100-200 लोगों के सामने। तो वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था भाई मेरे लिए। लाइक मुझे टेक तो ठीक है कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, बट मुझे ज्यादा खुशी यहाँ पे मिलती है। तो इसलिए इसलिए मैं ये ज्यादा करता हूँ। और फिर कुछ पेजेस इंस्टाग्राम वगैरह पे और वीडियोस हैं, वो सब तो मैं करता रहता हूँ साइड साइड से। बट उससे बहुत कंपटीशन मिला। लाइक सिस्को के लिए जब मैंने वीडियो वगैरह बनाया था तो मुझे वीडियो बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी और वीडियो सिलेक्ट भी हुआ था। और जब बात सिस्को की आती है तो पूरा लॉकडाउन मैंने सिस्को के लिए ही पढ़ा था भाई, पूरा CCNA 1 एंड 2 पूरा निपटा दिया था। और वही टारगेट बना के चला था, बट नहीं हुआ। पर जो भी होता है वो होता है। कोई बात ही नहीं है। और फिर TCS कोड बीटा भी निकला उसके पहले, सिस्को में तो थोड़ा आगे आ गए। लाइक TCS कोड बीटा निकला, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे किसी की हेल्प कर रहा था, और किस्मत से मेरे 2 प्रोग्राम चल गए थे, 2 ढाई चल गए थे मान लो। और फिर लाइक एक पार्शियल चला था, तो उस पे सिलेक्ट हुए। और फिर अगले साल हिट ये हुई कि जब रश्मि लोग को इंफ्रामाइंड का आया था मेल कि आपको इंटर्नशिप मिल रही है TCS में, तो मैंने वो मेल मिस कर दिया, ठीक है। और मतलब एक फॉर्म भरना था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैंने वो फॉर्म नहीं भरा, तो मेरे से मिस हो गई वो। लेकिन उसके बाद जब मेरे को पता चला कि इन लोगों का आया है, उसके बाद मैंने चेक किया तो वो मेल मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर सर को फोन किया ये, और हमारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं भाई किसी भी चीज में। मैंने HOD सर को फोन किया, वहां से फिर प्लेसमेंट सेल राजीव सर ने वहां बात की, तो उनको पहले मना कर दिया वहां पे फिर। तो मैंने बोला अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, पहले तो मेरे को डांट पड़ी बहुत, ठीक है। तो उसके बाद फिर सर का मेरे को एक दिन कॉल आया, राजीव सर का, कि उनसे बात हुई है, उन्होंने डिटेल्स मांगे हैं। तो मैंने डिटेल्स दिए, फिर उन्होंने बोला आप कर लो इंटर्नशिप, आप एलिजिबल हो। तो फिर 2 महीने की इंटर्नशिप की React.js पे। और उसके बाद इंटरव्यू का वेट, लाइक फिर ये हो गया था कि कहीं नहीं है तो TCS तो इंटरव्यू ले ही रहा है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। फिर धीरे धीरे फिर प्लेसमेंट सीजन आया, थोड़ा बहुत एप्टी वगैरह किया, एप्टी पे मैं अभी ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इंतजार करते जा रहे हैं, उनके मेंटर बोल रहे हैं कि तुम्हें 10 में से 9.5 की रेटिंग दी है, बट फिर भी नहीं हो रहा। बट फिर भी तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने फिर वो इंटर्नशिप जो देखते थे उनसे बात की, उन्होंने बोला पता नहीं कहाँ अटका पड़ा है, क्या हुआ है। तो और फिर उन्होंने बोला वेट करो, होगा होगा होगा। उसके बाद एक टाइम आया जब फिर लोग बोलने लगे वहां के ही कि अब तो हो गया सब। तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन तब नहीं बोला ठीक है, क्योंकि तब मेरे पास कुछ था नहीं ना। और लाइक फिर तो ऐसा लग रहा था, लाइक वरने तो और मैं तो एक टाइम पे बात करने लगे थे कि भाई मेरे को क्रिकेट खेल लेना चाहिए था और तेरे को पोएट्री कर लेनी चाहिए थी। तो ऐसा हुआ, बट फिर एक ऐसा हुआ कि एक कंपटीशन आया मैजिक की तरह लाइफ में, दिसंबर में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट फिक्साथॉन, ठीक है। वहाँ वो हैकाथॉन जैसा था, पहले उन्होंने पढ़ाया, फिर उस पर टेस्ट लिया, फिर एक हैकाथॉन हुआ, करीब 2 महीने चला। और कुछ 11,000 लोगों में 28 लोगों में से एक तुम्हारा भाई है। और 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 फिर बस ये कहानी चलती गई। और लेकिन अभी भी पोएट्री ज्यादा पसंद है। और पोएट्री देखी होगी, लाइक काफी लोग जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, अमन वर्मा 0712। ऑन अच्छा, अमन का ना, अमन ने आई थिंक ये मिस कर दिया, जब क्लास में कोई नहीं होता था ना, सिर्फ 4 बच्चे बैठते थे, जब सारे लोग बंक करके चले आते थे तो अमन वहां बैठा हुआ होता था। अमन ने ये मिस कर दिया, और जब वो कभी कैंपस बंक नहीं किया भाई, कभी बंक नहीं किया। मैंने शुरू में फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा अजीब लगता था, बट फिर मैंने बहुत बंक किया। मैंने तो मतलब ज्यादा बंक नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता था अमन के साथ बैठी हुई होती थी, बट मैंने फिर भी मतलब बंक किए हैं। आई हैड अ वेरी बिग ग्रुप। अमन का तो सिर्फ आई थिंक जो 12th मतलब जो अपने स्कूल से वो ग्रुप लेके आया था, उसमें 2-3 लोग और ऐड हुए होंगे, एंड दैट वाज अ ग्रुप। फिर उसके बाद तो हम ग्रुप सभी ग्रुप होते हैं, बट अमन का वो एक ग्रुप था जो मतलब वो स्कूल से लेके आया था, फिर 2-4 लोग और इंक्लूड हो गए, फिर और ही पूरा ग्रुप ही बन गया। बट मेरा वो कॉलेज में आके एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बन गया था, सो आई वॉज इन दैट। और आई थिंक अमन ने यही सब मिस कर दिया कि जब वो जो कैंपस प्लेसमेंट भी चल रहा था ना, या जब कुछ भी चलता था, अगर तुम सबसे पहले, जब वो कॉलेज में सर लोग बोलते हैं ना ग्रुप्स में प्लीज एक्नॉलेज, तो वो सबसे पहले किसी का एक्नॉलेजमेंट आता, दैट इज अमन वर्मा। ठीक है, अमन वर्मा
इज द पर्सन जिसके पास अभी 58 सर्टिफिकेट्स उसने सारी की सारी कर सकती है, जितनी कॉलेज वाले बोलते हैं अभी भी वो कर लेगा, ठीक है, अभी भी वो पीछे नहीं हटेगा। और अमन इज द पर्सन जिसने आई थिंक सबकी हेल्प करी होगी, सबकी। आई थिंक जितना भी वो बोल रहा था ना कि यार किसी से भी जाके पूछ लो, कोई बुराई नहीं बता सकता, तो अमन की तो गारंटी नहीं बता सकते, दैट आई एम 100% श्योर, उसकी कोई नहीं बताएगा। वो भी आई थिंक उसका भी कोडिंग क्लब, जब मेरा वेबपैक चल रहा था उसका भी एक कोडिंग क्लब चलता था जीटीआई सिटी में मिस हो नीचे। गया ये। हाँ, उसने भी वो क्लब में अच्छा, वो, किसी को पता है एक कोडिंग क्लब चलता था वेबपैक के साथ? हाँ, जो अमन करवाता था। किसी को नहीं पता क्या होगा भाई। क्या नाम से था? लेट्स कोडेट। मैं था उस क्लब में। वाह हाँ, वाह। अभिषेक मैं था। भी पहली क्लास में शायद तक अपन चाय बनाने से प्रोग्राम बनाना सीख रहे हाँ, हैं। एग्जैक्टली। और आई थिंक अमन ने एक बात मिस कर दिया है। वो लाइन ये थी कि अमन ने बोला है कि कभी भी ऐसा पढ़ो, आप अपनी फर्स्ट ईयर से अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि आप किसी और को पढ़ा पाओ। और आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल बिल्कुल। अमन वो बहुत अच्छे से पढ़ा भी सकता है। तुम लोग को अगर कभी भी कुछ होगा तो आई थिंक ही इज द वन। किसी को कभी ऐसे मतलब एटीट्यूड तो इस बंदे में देखा ही नहीं मैंने आज तक। पता नहीं कब देखूंगी, माइक्रोसॉफ्ट में चला गया तो अब दिखाएगा मे बी काइंड ऑफ, बट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट इवन। ठीक है, तो हाँ ये है जिसमें वो, अगर तुम कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन देखना चाहते हो तो अमन को देख लो। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर मी, कि जो सारे सर्टिफिकेट्स में एक्नॉलेजमेंट है। और क्लास में यार, क्लास में कोई नहीं है जब आपको नहीं दिखता ना, जब से यहाँ पे भी अभी सपोज मे बी इतने लोग इन्वाइटेड है, 18 लोग, तो 18 लोग बस हैं, तो यू फील लाइक यार मैं ही बस बैठा हूँ यार, मैं इतनी देर से वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, मैं अपना ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो कई लोग ऐसे क्लास मिस कर देते हैं। जब क्लास में सिर्फ 2 बच्चे होते हैं ना, तो एक अपने आप आउट हो जाता है ये सोच के कि यार बस 2 ही है, मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे। बट अमन तब भी वहीं पे था। वो आपको वो क्लास में भी दिखेगा जहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे होंगे, वहां पे एक अमन होगा हमेशा। मतलब अगर कॉलेज में अगर किसी को भी ना, पूरी क्लास में किसी को भी पूछना था कॉलेज में क्या चल रहा है, अभी भी ऑनलाइन भी, मतलब बिफोर प्लेसमेंट जब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ पढ़ाई, तब भी अगर किसी को क्लास में पूछना था ना कि भाई क्या चल रहा है कौन से सब्जेक्ट में, तो बस कुछ नहीं, सबको पता है कि एक कॉल लगाना है, अमन को लगाना है और उससे पूछ लेना है कि क्या चल रहा है, बस वो हो गया। तो ये अमन था और ये उसकी जर्नी थी। हाँ, बस देखो इतना है ना कि एक वो वाली लाइन जो मेरी फेवरेट है कि ऐसे पढ़ो कि पढ़ा सको। ठीक है, और भाई बड़ी ग्रुप्स में काम करो या अपना बडी बना लो, इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है भाई। लाइक बडी तो तुम्हें पता ही होगा, एक बंदे को पकड़ लो उसके साथ पढ़ो, तो एक लाइन ठीक है। ये उनके लिए है, मतलब जिन्होंने अभी अभी जर्नी चालू की है, ठीक है। तो एक ख्वाब है धुंधला सा, धुंधली ही सही, एक उम्मीद की किरण या कुछ मिल जाने की आस तो है। एक ख्वाब है धुंधला सा, धुंधली ही सही, एक उम्मीद की किरण या कुछ मिल जाने की आस तो है। और माना कि मंजिल दूर है अभी, माना कि मंजिल दूर है अभी, मगर अब जो इतना चल लिए हैं तो मंजिल दूर ही सही, लेकिन पहले से पास तो है।